तो कैसे हैं आप लोग? आज हम आईपीएफएस, गैस फीस, ब्लॉक एक्सप्लोरर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आईपीएफएस क्या है? इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम विकेंद्रीकृत क्लाउड स्टोरेज सिस्टम है जो कंप्यूटर नोड्स में कई कॉपी में डेटा अपलोड करता है ताकि कोई भी संशोधित न कर सके। सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम में डेटा एकल सर्वर में संग्रहित होता है जिसे आसानी से संशोधित और हैक किया जा सकता है। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव जैसे क्लाउड सर्वर। अब उदाहरण के लिए आईपीएफएस मेटाडेटा फाइल कैसे वितरित करता है? आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और 1 MB जेपीजी भी है और आप जेपीजी की 10 प्रतियां बनाते हैं और प्रत्येक 1 कॉपी को 10 कंप्यूटरों में मूव करते हैं। यह इस प्रकार काम करता है। आईपीएफएस सभी उपयोगकर्ताओं के लिए नोड रजिस्ट्रेशन भी प्रदान करता है। अब आईपीएफएस का उपयोग कैसे करें? पिनाटा क्लाउड का उपयोग करें। जब आप आईपीएफएस में फाइल अपलोड करते हैं तो सभी यूजर्स को 1 GB स्टोरेज मुफ्त प्रदान करते हैं। वे सीआईडी नंबर प्रदान करते हैं। यह हमारी फाइलों को देखने की अनुमति देता है। यदि आपके पास कोई पर्सनल इन्फो है तो किसी को भी सीआईडी साझा न करें। अब हमारी आईपीएफएस फाइलें कैसे देखें? बस कोई भी ब्राउजर खोलें और इसे लिखें और इसमें अपना सीआईडी नंबर डालें और फिर इसे खोजें। यदि आपने अपनी फाइलें पिनाटा क्लाउड आईपीएफएस में सहेजी हैं, तो आप इसे पिनाटा क्लाउड में भी देख सकते हैं। अब संदेह है कि हम विकेंद्रीकृत भंडारण के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन में डेटा संग्रहित करना महंगा है। There's Bitcoin, there's Litecoin, there's Ethereum. So just what is cryptocurrency and how does it work? Essentially, it's digital money that is bought and sold online. There are no bills or coins, it's not based on another asset like gold, and it doesn't go through traditional financial institutions like banks. Instead, these currencies operate in a completely decentralized system that uses so-called blockchain technology to track transactions. To see how this works, let's look at how you buy something with cryptocurrency. Say that Alice wants to buy a bike from Dan using Bitcoin, her cryptocurrency of choice. Alice begins by logging into her Bitcoin wallet with a private key, a unique combination of letters and numbers. With a traditional financial transaction, the exchange gets sent to banks on each side, who record the money being subtracted from one account and added to another. But remember, in this scenario, there are no banks or middlemen. Instead, Alice's transaction is shared with everyone in the Bitcoin network. These networked computers add Alice's transaction to a shared list of recent transactions, known as a block. Every 10 minutes, the newest block of transactions is added on, or chained, to all the previous blocks. That's how you get a blockchain. To ensure that each block of transactions on the chain is verified, a subset of Bitcoin's network joins a race to solve a very difficult math puzzle. And if they solve it first, their record of the block of transactions becomes the official record. They're rewarded with Bitcoins of their own, and the network gets a new block on the chain. This entire process is known as mining, but instead of chipping away at rock, you're solving complex puzzles. The fact that many computers are competing to verify a block ensures that no single computer can monopolize the Bitcoin market. To ensure the competition stays fair and evenly timed, the puzzle becomes harder when more computers join in. अब गैस फी क्या है? क्रिप्टो में माइनर्स होते हैं जो भुगतान भेजने वाले उपयोगकर्ता से गैस फी चार्ज करके लेन देन को सत्यापित करते हैं।
गैस फी भी क्रिप्टो की तरह ही अस्थिर होती है, लेकिन गैस फी की कीमत ब्लॉकचेन ट्रैफिक के अनुसार उतार चढ़ाव करती है। यदि ट्रैफिक अधिक होता है तो गैस फी की कीमत भी बढ़ जाती है। और एक और बात यह है कि गैस की कीमत कंप्यूट पावर पर भी निर्भर करते हैं। कंप्यूट पावर का मतलब है कि आपका लेन देन माइनर की अधिक कंप्यूटर पावर एंड टाइम ले रहा है, जिसका मतलब है कि आपको सफल लेन देन के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए टोकन ईऑर्गी या एनएफटी ईआरसी डाविस एआरसीआपन के स्मार्ट अनुबंध को तैनात करने पर वे अधिक कंप्यूट पावर का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर किसी भी टोकन को अन्य उपयोगकर्ताओं को स्थानांतरित करने में कम कंप्यूट शक्ति लगती है। अब यह एथेरियम ब्लॉकचेन का गैस ट्रैकर है। यह हर 15 सेकंड में रिफ्रेश होता है। अब गैस ट्रैकर में 3 मूल्य प्रकार हैं। पहला कम गति है, जिसमें 3 मिनट या अधिक समय लग सकता है और यह 12 ग्वेई चार्ज करता है। लेकिन क्या है ग्वेई जैसे बिजली में एएसआई यूनिट वोल्टेज या ओम की तरह है। गैस फीस में ईथर, ग्वेई, वेई भी इकाइयां हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोन, मिलीमीटर, सेंटीमीटर मेजरमेंट्स यूनिट्स। अब विषय पर वापस आएं। कम गैस फीस 12 ग्वेई है। इसका मतलब है कि आपको मानक लेन देन को पूरा करने के लिए 31 रुपए इन क्रिप्टो का भुगतान करना होगा। यह डिसेंट्रलाइज वॉलेट ट्रांजैक्शन टाइम शो होता है। यदि आप अनुशंसित से कम ग्वेई सेट करते हैं तो इस मामले में आपका पैसा भी कट जाएगा, आपका लेन देन भी विफल हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन यह एक नोड नेटवर्क की तरह है और आपका लेन देन ब्लॉक नोड में यात्रा करता है, जिसे वेरीफाई करने की आवश्यकता है कि क्या आपके ब्लॉक ने नोड्स की यात्रा की है। वेरीफाई कार्य केवल माइनर्स द्वारा किया जाता है और माइनर्स इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकते। अब बेस क्या है, आसान शब्दों में कहें तो आप अपनी कार से 4 किलोमीटर की यात्रा करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कार को 2 लीटर ईंधन की आवश्यकता है, लेकिन आपने कार में 1 लीटर ईंधन डाला और आप चले, लेकिन आपकी कार 2 किलोमीटर पर रुक गई क्योंकि आपने 1 लीटर ईंधन का उपयोग किया था, लेकिन आपको अपनी यात्रा पूरी करने के लिए 2 लीटर ईंधन की आवश्यकता है। अब इसमें प्रायोरिटी क्या है? अब आप कम गैस फी पर ब्लॉकचेन में लेन देन का अनुरोध करते हैं, जो 12 ग्वेई है, जिसमें 11 बेस और 1 प्रायोरिटी शामिल है, और उच्च गति लेन देन 13 ग्वेई है, जिसमें 11 बेस और 2 प्रायोरिटी शामिल है। अब माइनर कंप्यूटर स्वचालित रूप से पूर्णता के लिए उच्च गैस फी लेन देन का चयन करता है, क्योंकि खनिक केवल उच्च भुगतान वाले गैस फी लेन देन करते हैं। कम या मध्यम गति वाले गैस फी लेन देन के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे इस फोटो की तरह उच्च भुगतान वाले न हो जाएं। क्रिप्टो माइनर्स के लिए प्रायोरिटी एक टिप की तरह है। आप भी क्रिप्टो माइनर्स बन सकते हैं, बस आपको शक्तिशाली जीपीयू वाले कंप्यूटर की आवश्यकता है और मजबूत इंटरनेट कनेक्शन। अब ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या है? ब्लॉकचेन में प्रत्येक लेन देन, सभी उपयोगकर्ता शेष, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, गैस फीस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बग, यह सभी जानकारी ब्लॉक एक्सप्लोरर में सार्वजनिक है। सभी उपयोगकर्ताओं की जानकारी अज्ञात है। लेन देन को ट्रैक करने के लिए केवल वॉलेट सार्वजनिक पता दिखाया जाता है। यह लेन देन क्यों है, या ब्लॉकचेन में दिखाए गए अन्य रिकॉर्ड? जब माइनर्स उपयोगकर्ता लेन देन पूरा करते हैं तो वे लेन देन रिकॉर्ड की लाइव जानकारी भी प्रदान करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारा लेन देन सफल या विफल है। किसी अन्य व्यक्ति को क्रिप्टो भेजते समय आवश्यक जानकारी हमेशा जांच लें कि आपने उसका सार्वजनिक पता सही लिखा है। यदि आप गलत सार्वजनिक पते पर क्रिप्टो भेजते हैं तो आप अपने लेन देन का धन खो देंगे और वे कभी वापस नहीं मिलेंगे। भुगतान प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक पता साझा करते समय यह भी सावधानी बरतें कि क्या यह सही है या नहीं। अब एथेरियम ब्लॉकचेन में लेन देन रिकॉर्ड कैसे जांचें? बस इथरस्कैन खोजें। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के लिए पॉलीगॉन स्कैन खोजें। अन्य ब्लॉकचेन पर भी लागू करें। नहीं, आप सोच रहे हैं कि वे सभी अलग अलग ब्लॉकचेन हैं और एक अलग ब्लॉक एक्सप्लोरर भी है। इसके बारे में चिंता न करें। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, सभी ब्लॉक एक्सप्लोरर इंटरफेस में समान हैं, लेकिन अलग अलग ब्लॉकचेन हैं। अब इस वीडियो का अनुसरण करें
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ब्लॉकचेन की बुनियादी विशेषताओं और मेटाडेटा के साथ कला उत्पन्न करने के तरीके के साथ ERC-20 इक्विटीज NFT के लॉन्च के बारे में चर्चा करेंगे।